اس کی ریزن یہ ہے کہ کیونکہ شاہ رخ کی ابھی ایک مووی آ رہی ہے اچھا پٹھان، تو وہ ابھی اس میں بیزی ہے. سلمان، شاہ رخ اور کترینہ یہ ایک دن کے لیے آئے. لاسٹ ٹائم جب ارطغرل غازی آیا تو 40 باؤنسرز کی ٹیم تھی جو میں نے اس کے لیے ہائر کی تھی. دیکھیں اس طرح تو بہت سے ایسے کام ہمارے پاکستان میں، دیکھیں پی ایس ایل ہوتا ہے انڈیا میں، سلمان کے مینیجر سے ادھر ملاقات ہوئی. اچھا. تو اب میرا یہ پلان ہے کہ سلمان کو میں نے پاکستان لانا تھا، لیکن اس سے پہلے اب میری کترینہ کے لوگوں سے بات ہو گئی ہے. ویسے میرے چانسز یہ ہیں کہ سلمان پہلے آ جائیں گے، لیکن سلمان اور شاہ رخ میں دونوں کو وقفے سے پاکستان میں لے کے آئیں. پہلے سلمان آئے. السلام علیکم ناظرین، لیڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ مرزا. آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین، کچھ دنوں پہلے ایک معاملہ سامنے آیا، نوسر بازی کا معاملہ سامنے آیا، جس کا کہیں گے مین کردار یا مرکزی کردار جو تھا وہ کاشف ضمیر پر مبنی تھا. وہ کاشف ضمیر کون ہے؟ نوسر باز. اس نے کیا کیا؟ ایسے معاملات کیا کیے؟ یا کن کن کے ساتھ معاہدے کیے؟ یا کن کن اہم شخصیات کے ساتھ دھوکے بازی کی یا نوسر بازی کی؟ یا یہ پیسہ کس طرح اس نے کمایا؟ یہ شہرت کس طرح اس نے حاصل کی؟ انشاءاللہ اسی حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور تمام معاملات کا بھانڈا پھوڑیں گے، یا پھر تمام معاملات کا جو لمحہ فکری ہے کہ اس طرح کے معاملات یا اس طرح کے نوسر باز اہم شخصیات تک ان کی رسائی کیسے ہوتی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی خرم پاشا صاحب موجود ہیں. ان سے کچھ سوالات بھی کریں گے اور اس معاملے کو ہم جو ہے وہ کھولیں گے اور اس سے مزید ویژن کلیئر کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو ویلکم کہیں گے اور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ ہمیں بتائیے گا کہ اس کیس کو ڈیل کرتے ہوئے یا دیکھتے ہوئے اب اس کا جو کیا پس منظر ہے ہم پوچھنا چاہیں گے. سب سے پہلے بات ہے کہ اس سارے معاملے میں جو چیز سامنے آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک لالچی زندہ ہے فراڈیا نہیں مر سکتا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ کاشف ضمیر ایک انٹرنیشنل فراڈی ہے، اور اس نے کس طرح لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا تھا. اس کے سارے معاملات کی جب چھان بین کی ہے تو دیکھ کے عقل دنگ رہ جاتی ہے. اگر آپ اس کے سارے پرانے انٹرویوز دیکھیں تو وہ اتنی دلیری کے ساتھ یہ بات کہتا تھا کہ میرے والد سابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مظفر گڑھ تھے، حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اچھا. اس کے والد ایک عام آدمی تھے. کاشف ضمیر کا تعلق ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ایک انتہائی پسماندہ علاقے سے ہے. یہ شخص وہاں سے لاہور آتا ہے، لاہور آ کے سبزہ زار کے علاقے میں ایک گھر کرائے پہ حاصل کرتا ہے. اس کی چونکہ کمپنی اس قسم کی تھی، پارٹی کے لوگ مل گئے جو ڈانس پارٹیوں کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں اس کا اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا. آہستہ آہستہ اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا، اور سب سے پہلے اس نے جو ایک ٹرینڈ مارکیٹ میں دیا جس کی وجہ سے اس کو خاصی شہرت ملی، وہ یہ تھا کہ اس نے بھاری بھرکم زیورات پہنے ہوتے تھے. یعنی کہ سونے کی چینز پہنی ہیں، بریسلٹ پہنے ہیں، انگوٹھیاں پہنی ہیں، گھڑیاں پہنی ہیں، اور یہ چیز وہ لوگوں کو دکھا کے اپنی طرف مائل کرتا تھا. پھر ٹک ٹاک پہ شروع ہو گیا. یہ ایک جو برائی ہمارے معاشرے میں ٹک ٹاک کے نام پہ جو شروع ہوئی ہے، اور یہ ہماری نسلوں کو خراب کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے. اس ٹک ٹاک میں سے اس نے خاصی شہرت حاصل کی. اچھا. اور جو چیز اس سارے معاملے میں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بڑی حیران کن بات ہے کہ یہ اتنی وی آئی پی شخصیات تک پہنچ کیسے جاتا تھا. مثال کے طور پہ موجودہ گورنر پنجاب چودھری سرور کے ساتھ اس کی بے تحاشا تصویریں ہیں. بلکہ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، اس ویڈیو میں وہ چودھری سرور صاحب کو بھی ایک گولڈ کی رنگ گفٹ کر رہا ہے. جی بالکل، یہ بھی معاملہ سامنے آیا تھا اور کافی قیمتی. اس کے بعد سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے ساتھ، یوں ہی دیگر اہم شخصیات کے ساتھ. ابھی دوست ذکر کر رہے تھے موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کا کہ ان کے ساتھ بھی تصاویر تھی. چلو وہ تو ایک سمجھ آتی ہے نا کہ جب ترک اداکار پاکستان آیا، وہ ملاقات کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس گیا تو وہاں پہ اس کی تصاویر بن گئی. چلے اس کی تو ایک سمجھ آتی ہے کہ وہ کس موقع پہ بن گئی. لیکن باقی سیاستدانوں کے ساتھ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ان سے ہیں، اس کے کیا نام ہے بیٹے کی سالگرہ کا کیک کاٹ رہے ہیں. اچھا. اور ان سب کے ساتھ اس کی بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی. یہی چیزیں وہ لوگوں کو دکھا کے لوٹتا تھا. کسی کو نوکری کا جھانسا دے دیتا تھا، کسی کو بیرون ملک بھجوانے کا جھانسا دے دیتا تھا، کسی کو کوئی سرکاری کام کروانے کا جھانسا دیتا تھا. تو اس نے لاکھوں کروڑ روپے لوگوں سے لوٹا. سوری سر، انٹرپٹ کرنا چاہوں گی. اینگن الطان جو کہ ترک کے اداکار ہیں، ان کو کن معاہدہ کی بیس پہ انہوں نے بلایا اور کس معاہدے کی بیس پہ بلایا؟
क्या उनको ये डर नहीं लगा, इसको ये डर नहीं लगा कि अगर ये मामला खुल के ये मामला सामने आएगा तो इस पे मुझे काफ़ी सज़ा भी हो सकती है या ये मामला काफ़ी आगे तक भी जा सकता है? देखें, ये तो उसकी दीदा दिलेरी है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो तुर्क लोग हैं ना, चाहे वो हुकूमती लेवल के हैं या आम लोग हैं, वो पाकिस्तानियों से बहुत प्यार करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि तुर्की में पाकिस्तान की बहुत इज्जत है। और अगर आप, चूँकि मुझे खुद वहाँ 2-3 बार जाने का इत्तेफाक हुआ है, अच्छा, तो जब उन लोगों को पता लगता है मैं पाकिस्तान से हूँ तो वहाँ के जो लोग हैं बहुत इज्जत देते हैं। यही कुछ सिलसिला उस तुर्क अदाकार के साथ भी था कि उसको एक इत्मीनान था पाकिस्तान पे, पाकिस्तानियों पे। और जिस तरह इसने एक जाल बुना और जिस तरह उसको बुलाया और उसके बाद उसके साथ एग्रीमेंट करके उसे जाली चेक दिया। और आप इसके सारे साहबका इंटरव्यूज उठा के देखें, वो बड़ी ढटाई के साथ इस बात पे बजिद है कि जनाब, पहले कहता था मैंने आधी पेमेंट दे दी हुई है, फिर कहता था मेरा चेक जोन सा है वो स्टेट बैंक ने रोक लिया है कि स्टेट बैंक वाले मुझसे इस चीज़ का हिसाब मांग रहे हैं कि ये वाइट मनी है कि ब्लैक मनी है, इसकी मनी ट्रेल दो, तो वो मैं नहीं दे पा रहा। चूँकि वो मेरे दादा अबू के पास सारा हिसाब किताब होता था, दादा अबू फोत हो गए हैं, मेरे पास रसीदें नहीं हैं। और आप अगर इसके जो हमारे सोशल मीडिया पे इसके इंटरव्यू मौजूद हैं, उसमें बड़ी डटाई के साथ इन चीज़ों का इजहार कर रहा है और वो डटा हुआ है। और उससे आगे चले ना, अभी कुछ अर्सा पहले उसने एक नया शोशा छोड़ दिया और हमारी आवाम जौन सी है, मासूम आवाम उसके पीछे लग गई। तो उसने एक शोशा ही छोड़ दिया, जी मैं संजय दत्त को पाकिस्तान ला रहा हूँ, मैं कतरीना कैफ को पाकिस्तान ला रहा हूँ, मैं सलमान खान को पाकिस्तान ला रहा हूँ, मैं शाहरुख खान को पाकिस्तान ला रहा हूँ। वो इस किस्म के शोशे छोड़ता था और अपने इंटरव्यूज़ में वो लोग इस बात से उससे इम्प्रेस हो जाते थे। और एक चीज़ जो मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए बेनकाब करने जा रहा हूँ कि अकेला काशिफ ज़मीर ही नहीं, उसका छोटा भाई मियाँ खुर्रम ज़मीर भी बिल्कुल उसके एंगल पे चल रहा था। अच्छा, अभी आपको ये देखा जाए, हम दिखा रहे हैं ये चीज़ कि मियाँ खुर्रम ज़मीर ने भी अपने गले में वही जैली सोना पहना हुआ है, शेर पाले हुए हैं। अच्छा। और उसकी भी तमाम अहम शख्सियात के साथ तस्वीर हैं, जिनमें साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ के साहबजादे और पंजाब में ओपोजिशन लीडर मियाँ हमज़ा शहबाज शरीफ। और बल्कि हमज़ा शहबाज शरीफ के साथ तो उसकी बेपनाह तस्वीरें हैं, बेपनाह मुलाकातें हैं। और काफ़ी उन तस्वीर से देख अंदाज़ा होता है कि हमज़ा शहबाज के साथ उसके बहुत अच्छे तल्लुकात थे। इसी तरह आप आ जाए मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा, ख्वाजा साद रफ़ीक, मियाँ मरगूब अहमद, ख्वाजा इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन, उन सब के साथ उसकी तस्वीर मौजूद हैं, मुलाकातें कर रहा है। ये तो होगी सियासी शख्सियात जो नून लीग से तल्लुक़ रखती थी। आप हुकूमती फैक्टर की तरफ आ जाएँ तो वज़ीर दाखिला मौजूदा शेख रशीद के साथ उसकी तस्वीर हैं, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के साथ उसकी तस्वीर हैं। इसी तरह साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ भी उसकी तस्वीर हैं। ये तो हैं सियासी शख्सियात। तो क्या सर सिर्फ सियासी लोगों को ये इस तरह का टारगेट करता था या दूसरे शोबिस के लोगों को भी ये टारगेट नहीं करता जी, था? अभी मैं उसी तरफ आ रहा था। अभी आप खेलों की दुनिया में आ जाएं। अच्छा, क्रिकेटर हैं मिसबाउल हक, हमारे क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक हैं। बल्कि मेरी एक ताजर रहनुमा के साथ बात हो रही थी, उनका भी काशिफ ज़मीर के साथ बड़ा एक दौर में क्लोज रिलेशन रहा है। तो जब उनके सामने सारी सूरत हाल आई है तो वो बड़ा अफसोस का इजहार कर रहे थे। तो मैंने कहा जी आपके साथ भी बड़ी उसकी तस्वीर थी। तो मुझे वो कहते हैं कि मुझे क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने मिलवाया था इसके साथ। अच्छा, और रज़ाक के ज़रिए ही मेरी इसकी एक दोस्ती का आगाज़ हुआ था। फिर आप शोबिस की दुनिया में आ जाएं, अदाकार मीरा, अच्छा। अदाकार महानूर, बल्कि महानूर के साथ तो इसने एक गाना भी अपना पिक्चराइज कराया था। फिर उसके बाद आप इफ्तिखार ठाकुर देख लें, नासिर चिन्योटी है, आसिफ इकबाल है, हुमायूं सईद, जावेद शेख, गुलूकार जोन से है अकरम राही, उनके साथ इनकी बहुत सारी तस्वीर मौजूद हैं। एक अदाकार है हमारे शफकत चीमा, उनके साथ इसकी तस्वीर मौजूद हैं। शेर मियां दाद कवाल के साथ, मज़र राई गुलूकार है, उनके साथ। मतलब ये किसी भी तकरीब में जब जाते थे या मिलते थे, इन लोगों के साथ तस्वीर बनाते थे। दोनों भाइयों का ये सिस्टम। तो सर ये मुझे बताइएगा, जब इन अहम शख्सियात के साथ वो इस तरह की नौसरबाजियाँ करते तो क्या इन्होंने आम लोगों को लूटा नहीं होगा? क्या आम लोगों पर इन्होंने पंजे नहीं गाड़े होंगे? यही तो बात है कि इन लोगों के साथ तस्वीर दिखा के ये आम सादा लो शहरियों को लूटता था। अब देखें इसके ज़ेरे इस्तेमाल आज तक जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं वो कीमती से कीमती थी और सबकी सब जो सी होती थी वो किराए की होती थी। और एक और दिलचस्प मैं आपको बात बताता हूँ कि जब ये गिरफ्तार हुआ है, जिस दिन पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी जाहिर की, इससे जो घड़ियाँ बरामद हुई हैं तो इससे एक सवाल पूछा गया, ये घड़ियाँ कितनी मालियत की हैं और इनमें असली कौन सी है?
वो तकरीबन कोई 6-7 घड़ियाँ थी। उसमें से एक घड़ी के बारे में इसने निशानदेही की कि ये 1 नंबर घड़ी है। अच्छा। तो इससे पूछा गया कि इसकी मालियत कितनी है, तो कहता 5,500 रुपये। जबकि अच्छा। आप इसके इंटरव्यूज में देखें कि इसको एंकर सवाल करता है कि आपने ये कीमती घड़ी पहनी है, इसकी मालियत क्या है, तो ये बता रहा है जिसमें डायमंड और गोल्ड मिक्स है और ये 1 करोड़ पे मालियत की है। इसी तरह एंगन अल्तान को इसने एक अंगूठी गिफ्ट की जिसकी मालियत इसने 60 लाख रुपए अपने इंटरव्यूज में बताई। वो अंगूठी भी जाली निकली, वो भी जाली निकली है। तो सर काशिफ ज़मीर को जो अरेस्ट किया है तो उसका भाई भी उसके नक्शे कदम पे चल रहा है या निकला है वो वैसा ही नौसरबाज, तो उसको नहीं अरेस्ट किया क्या? इस हवाले से मेरी पुलिस हकाम के साथ बात हुई थी, ये सवाल मैंने उनसे पूछा था, तो उनका ये कहना था कि अभी तक उसके भाई के बारे में कोई शिकायत नहीं आई, और जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि उसके ख़िलाफ़ भी धोखाधड़ी के 2 मुकदमा दर्ज हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा मुद्दई सामने नहीं आया जिसने शिकायत की हो कि मियाँ खुरम ज़मीन ने हमसे फ्रॉड किया है, इसलिए पुलिस ने उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं लेकिन किया। सर एविडेंस तो है, हम लोग तस्वीर भी दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, नाज़रीन देख रहे हैं कि अहम सियासी शख्सियात के साथ भी हैं और स्टेज के शोबिस के लोगों के साथ भी हैं और न जाने किन किन लोगों को इन्होंने फ्रॉड किया है। तो ऐसे नौसरबाजों को तो और मौका ही नहीं देना चाहिए। आप क्या कहेंगे? देखें, जब तक पुलिस के पास कोई कंप्लेनेंट नहीं आता, पुलिस अपने तौर पे तो गिरफ्तार नहीं करेगी। अब जिस तरह ये काशिफ ज़मीर का मामला है, पहले भी गिरफ्तार हुआ, फिर इसकी ज़मानत हो गई, और अब चूंकि डायरेक्टली शिकायत तो गवर्नमेंट की तरफ से आई थी, तो पुलिस को बहुत ज़्यादा, बल्कि मैं कहूँगा गैर मामूली तौर पे मुतहर्रिक होना पड़ा और इसको गिरफ्तार किया। और इसके कब्ज़े से जो कुछ बरामद हुआ वो हम आपको नाजरीन को मैं अपने प्रोग्राम में भी दिखा चुका हूँ, इसकी हकीकत सामने आ चुकी हुई है। अब मैं तो यही कहूँगा कि अब सब कुछ उसका अयां हो चुका है, बाहर तो उसने आ ही जाना है कभी ना कभी, तो अब अल्लाह ताला आने वाले वक्त में लोगों को इससे बचा के रखे। जी बहुत शुक्रिया आपका खुरम पाशा साहब अपने कीमती वक्त का। नाजरीन, ये अवेयरनेस प्रोग्राम उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपको काफ़ी मालूमात भी हासिल हुई होगी कि सिर्फ काशिफ ज़मीर ही नहीं, उसका भाई भी नौसरबाज निकला। हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। राबिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।